We will start with fluid. Okay, let's know a few basic things about fluid statics. Student, basic properties you know. Students, you know about a physical quantity, that is density. I think you know density is equal to mass by volume. Yes or no? And friend, if I'll go for a CGS unit, it is how much? Gram per centimeter cube. And if I'll go Yes, for MKS unit, it is kg per meter cube. Standard density of water is how much, students? 1000 kg per sir, 1 gram per. 1000 kg per meter क्यों अगर हम उसको CGS पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 into 1 kg is how मीटर much? क्यूब 10 to the 3 gram by 1 meter is 10 to the 2 centimeter. Centimeter का cube, it is centimeter cube, then it is cancelled out, total 1 gram per centimeter cube. This is the CGS unit of CGS value of water is 1 gram per centimeter cube, and SI value or MKS value is 1000 kg per meter cube. Friends, there is another quantity like physical, we say relative density, also we say it as specific gravity. Relative density, that means we are comparing the density of one medium, density of a material with density of water. Relative density, sometimes written as RD. This is also sometimes written in the question specific gravity. Specific gravity. That is SG. What is that? It is density of the substance. Density of the substance divided by density of water 4 degree centigrade. Anomalous expansion of water 4 degree. Up to 4 degree it expands, contracts, then it expands. Friends, let's मैंने आपको बताया relative density of a oil. मैंने बताया relative density of a oil is 0.8. तो उसका density of oil कितना हो जाएगा? That means students 0.8 is equal to how much? Density of oil. सर डेंसिटी ऑफ वाटर जो निकाले हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ 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 0.8 is equal to 0. Density of oil by density of water. Yes or no? So that is equal to density of oil. If I will go for, then that is 0.8 into density of water. That is how much? 0.8 into 1000. अगर CG MKS पे निकालेंगे तो ऑयल की डेंसिटी कितना हो गया? 800 kg per meter cube. बहुत सारे क्वेश्चन पे वो डायरेक्टली डेंसिटी ना देके इस तरह दिया होगा रिलेटिव डेंसिटी, तो वहीं से आप निकाल दोगे कि उसकी डेंसिटी एक्चुअल पे कितना है. Let's go to how to find the density of a mixture of two or more liquids. Okay, we are going to find the density of mixture. Density of mixture. How to find that? Friends, let मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया जिसपे कुछ लिक्विड लिया मैंने जिसका डेंसिटी ρ1 है और उस लिक्विड की मास m1 है और उसकी वॉल्यूम जो है ना v1 है. करेक्ट. मैंने और एक कंटेनर लिया जिसपे और एक लिक्विड लिया जिसका डेंसिटी ρ2 है, जिसका मास m2 है और जिसकी वॉल्यूम v2 है. करेक्ट. स्टूडेंट, अगर मुझे मैंने उस दोनों लिक्विड को एक जगह पे मिला दिया, आई जस्ट मिक्स देम, इसको और इसको मैंने मिला दिया, तो ये जो नया लिक्विड होगा उसके मिक्सचर की डेंसिटी कितना होगा? फ्रेंड्स, अगर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल लिक्विड की मास निकाल देंगे, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. करेक्ट. टोटल मास की अगर बात करेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? पहला का m1, दूसरा का m2, डिवाइड बाय इसका कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2. ये हो गया मेरा जनरलाइज्ड फार्मूला. फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है बट डेंसिटी इसका दिया हुआ है, डेंसिटी इसका भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ρ1 इज इक्वल टू m1 बाय v1 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ρ2 इज इक्वल टू m2 बाय v2. अगर मुझे वॉल्यूम को मास से रिप्लेस करना है, डेंसिटी से रिप्लेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा? m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय
V1 के बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, M1 by rho 1. तो लेट वी कैन राइट हियर M1 by rho 1. सिमिलरली V2 की जगह पे लिख सकते हैं M2 by rho 2. गॉट इट. ये हो गया मेरा जनरलाइज्ड फार्मूला. अगर स्टूडेंट दोनों जो लिक्विड मैंने मिलाया अगर उनका मास इक्वल है, इधर मासेस आर इक्वल, अगर इस दोनों लिक्विड की मास M1 इज इक्वल टू M2, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसका मास M मैंने मिलाया, तो अगर M यहाँ से कॉमन ले जाएंगे, M यहाँ से कॉमन ले जाएंगे तो 2M, है कि नहीं. और यहाँ पर 1 by rho 1 plus 1 by rho 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे देन स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा रो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 2 rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2. करेक्ट, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. ठीक, उसी तरह स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम सेम दे दिया उसने, तो यहीं पे वॉल्यूम मास को रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम पे, दैट मींस डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को अभी इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है. M1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, रो 1 V1 लिख सकते हैं ना. तो इसलिए इस फार्मूला पे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ. तो हम यहाँ पर M1 की जगह पे लिखेंगे रो 1 V1 प्लस M2 की जगह पे लिखेंगे रो 2 V2 बाय V1 प्लस V2. अगर उसने फिर सब केस दे दिया वॉल्यूम सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना बन जाएगा अभी इन टर्म्स, अगर वॉल्यूम सेम है तो रो 1 प्लस रो 2 बाय 2. ये दोनों फार्मूला आप डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के रिगार्डिंग भी याद रख सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स सी हाउ द डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. Friends, you know effect of temperature on density. Effect of temperature on density. Effect of temperature on density. Friends, देखो अगर मैंने टेम्परेचर को राइज करवा दिया, तो इफ टेम्परेचर द लिक्विड इज इंक्रीज्ड और मास सेम रहे, तो स्टूडेंट वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज ना, एक्सपांड कर जाएगा ना वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मैंने बताया कि मास को मैंने कांस्टेंट रखा. Yes or no? Density is inversely proportional to what? 1 by V. समझ पा रहा ना. देन स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो डिक्रीज हो जाएगा. गॉट इट. इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, मास रिमेन्स सेम, देन स्टूडेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा. गॉट इट. ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of pressure on density. स्टूडेंट्स प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया, अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो पीवी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट. एज प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम विल डिक्रीज, एंड जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो कीप इन माइंड, अगर वो इस तरह की स्मॉल क्वेश्चंस आए तो आप इसको बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रेशर इन ए फ्लूइड. एक फ्लूइड में प्रेशर कितना क्रिएट होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी. स्टूडेंट प्रेशर की बात करूं, आपको पहले अपनी अर्ली क्लासेस पे 8 पे आप प्रेशर के बारे में पहले पढ़े होंगे. तो अगर प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू, यू नो, फोर्स पर यूनिट एरिया. यस और नो. अगर उसकी यूनिट की बात करें तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पास्कल. यू नो, यस और नो. अगर ऐसा यूनिट की बात करें दैट इज 1 पास्कल. स्टूडेंट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस और नो. 1 Pascal is 1 Newton per meter square. So another unit of pressure is also 1 bar. 1 bar is equal to how much? 10 to the 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. ठीक है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, if I'll say you about atmospheric pressure, that is P naught. स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, the earth atmosphere. Students, how much? 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. Yes or no? उसको भी कहते हैं 1 atm, 1 atmospheric, that is equal to how much? 1.013
into 10⁵ पास्कल। कभी कभी उसको भी अप्रोक्सीमेटली बारोमीटर है ना जो प्रेशर यूज मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर भी कभी कभी अप्रोक्सीमेटली हम 1 बार बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे आया हम अभी बताएंगे, हाउ डिड दिस वैल्यू केम। और स्टूडेंट अगर कभी कभी लिंक दिया रहता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं, मानो कि मुझे किसी भी जगह पे प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर कितना है। तो अगर स्टूडेंट मैं एब्सोल्यूट प्रेशर निकालूं, इफ आई विल बी फाइंडिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस पॉइंट, तो मुझे ऊपर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करना होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस ये जो प्रेशर हम निकालेंगे, कुछ अभी हम निकालेंगे कि प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो ये जो प्रेशर उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गॉज प्रेशर, पी गॉज। तो हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का टोटल प्रेशर निकालेंगे तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इंक्लूड कहीं कहीं पे किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस में भी वो नहीं करके ऐसे ही डायरेक्टली पी गॉस लिखता है। तो रिमेंबर ऐसा भी कुछ है, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पूछा तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर। और गॉस प्रेशर कैसे निकालेंगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, प्रेशर कैसे डेप्थ के साथ वेरी करता है, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स मान के चलो मैंने यहाँ पर एक लिक्विड कलम लिया, ठीक है, इसका डेरिवेशन है बट थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेशर कैसे निकालते हैं। लेट्स स्टूडेंट इसका लेंथ dy है, करेक्ट। इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, इसका एक पर्टिकुलर एरिया है कि नहीं। फ्रेंड्स अगर हम उसकी वेट की बात करें, फ्रेंड्स वेट क्या है, वेट क्या है, mg ना। सर और mg क्या क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी कर सकते हैं। डेंसिटी अपनी जगह पे रहा, ये जो वॉल्यूम है इसका पर्टिकुलर कुछ एरिया है, तो एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं ना वॉल्यूम के बदले में, यस सर इनटू जी लिख सकते हैं। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसका तो डेरिवेशन है बट मैं उस तरह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो यू नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और ये फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स ना, mg बाय एरिया। तो mg को हमने क्या रिप्लेस किया, रो ए एच इंटू जी बाय एरिया, करेक्ट। अगर हम एरिया एरिया कैंसिल कर देंगे तो प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, रो जी एच। डेंसिटी एक लिक्विड के इनसाइड पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट कितनी ऊंचाई पर है, at what height it is from the base top level, that height, acceleration due to gravity and density of the fluid, वही हमें क्या देगा, प्रेशर। और उसी प्रेशर को निकालने का मतलब हम गॉज प्रेशर निकालते हैं, दैट इज नोन एज गॉज प्रेशर। उसी पे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो जस्ट फॉर नाउ यू रिमेंबर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू एच। फ्रेंड्स सी हियर, अगर मैंने यहाँ पर तो स्टूडेंट अगर हम प्रेशर और हाइट के हिसाब से ग्राफ बनाएं, प्रेशर और हाइट कैसे वेरी करता है। फ्रेंड्स अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर किया जाएगा तो पहले से कुछ प्रेशर रहेगा ना हमेशा, पी नॉट, ऐसा नो, और वहीं से हाइट बढ़ने के हिसाब से वो बढ़ जाता है। मींस अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो दैट इज पी प्लस रो जी एच। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया होगा तो ओरिजिन से शुरू होगा, गॉट इट, ये सब नो। फ्रेंड्स मान के चलो मैं कुछ केसेस आपको बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप समझ जाओगे किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लिक्विड कलम रखा, ठीक है, उसके अंदर पे मैंने ऐसा कुछ एक ब्लैंक स्पेस रख दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिक्विड जो है ना यहाँ पर है इस लेवल पे, ये लिक्विड लेवल है, ये लिक्विड है, ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। और यहाँ ऊपर में कौन सा प्रेशर लगेगा स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। यहाँ पर भी क्या प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अगर सेम लेवल पे मैंने दो पॉइंट्स लिया पी ए, और दोनों दोनों जो है ना वो लिक्विड लेवल से इक्वल हाइट पे है एच, दोनों जो है वो इक्वल हाइट पे है एच। तो स्टूडेंट बेशक हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट सेम लेवल रिमेन सेम, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इनटू एच, करेक्ट। सेम लेवल पे प्रेशर सेम। उसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन आऊंगा जो हमारा मतलब सेम लेवल पे कैसे प्रेशर निकालते हैं, अलग अलग होगा तो कैसे होगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक एप्लीकेशन आपको पास्कल्स लॉ की, ठीक है, जी है पास्कल्स लॉ, यू नो स्टूडेंट्स। पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि the pressure applied to an enclosed fluid is equally transmitted to every portion of the fluid at the walls of the container containing vessels. सर सुनाई नहीं दे रहा। Pascal's law states that the pressure applied
ऑन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एनक्लोज्ड फ्लूइड लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने किसी भी तरह प्रेशर अप्लाई किया। आप एक बैलून ले लो, उसके अंदर पानी है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो जो प्रेशर है ना वो इक्वली ऑल डायरेक्शन पे ट्रांसमिट होगा। प्रेशर रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशन हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस पे पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस होता है। एकदम बता देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आप लोग अगर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आए तो बना दो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं कुछ फोर्स दे रहा हूँ, लेट यहाँ पर मैं कुछ फोर्स दे रहा हूँ F1 और इसका एरिया A1 है। यहाँ पर मैंने कुछ लोड्स रखा, ठीक है, लेट आई केप्ट ए लोड हियर, कुछ भी लोड मैंने रखा यहाँ पर, सो मतलब लोड है मतलब क्या है, इसका एरिया A2 है, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा F2, और ये इन एनक्लोज्ड लिक्विड है तो प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड। इस लेवल पे जितना प्रेशर होगा यहाँ पर प्रेशर उतना ही होगा, दैट मींस P1 इज इक्वल टू P2, और P1 कितना है, F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, ठीक है। अगर F1 A1 F2 दे दिया तो आप A2 बना सकते हो, और वो सर्कुलर सिलेंडर करके एरिया पाई आर स्क्वायर भी दे सकता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आपको पता है तो। F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, मैंने इसका एरिया इतना बनाया और यहाँ पर इतना फोर्स दिया, तो यहाँ पर कितना लोड को रेज किया जा सकता है अगर पूछा है उसने, तो आप आराम से F2 निकाल दोगे। कोई 3 दिया होगा, बाकी एक निकालने के लिए बोला होगा। अगर F2 की बात, अगर कितना लोड हम उठा सकते हैं हाइड्रोलिक के जरिए, तो क्या करेंगे, A2 by A1 into F1, ऐसे करके आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो किस पे, हाइड्रोलिक प्रेस पे। इस तरह के क्वेश्चंस भी इजी लेवल पे आ सकते हैं, जुड़ा हुआ है। Let's see a few questions on that basis so that you could understand a few more logics. Friends, अगर यहाँ पर एक enclosed fluid है, ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर मैंने कुछ फोर्स दिया तो जो प्रेशर है ना वो हर डायरेक्शन पे इक्वली एक्सर्ट होगा। मींस एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट पे at the same point and the fluid pressure is same in all direction, that means P1 is equal to P2, क्योंकि यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है, एक सेम पॉइंट पे P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4, सारे सेम है, ठीक है। Friends, forces acting on a fluid in equilibrium have to be the perpendicular to its surface because it cannot sustain। ये कुछ जो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के बारे में, बट आप याद रखो कि ये हमेशा एक सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट होता है, इसलिए ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं ना उसको। प्रेशर इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट, एक लिक्विड कलम के बारे में बताता हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। इस तरह की डायग्राम्स की भी पहले आया है, कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली है क्या लॉजिक पास्कल्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक यूट्यूब मान लिया, जो लिया यहाँ से, मान के चलो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, डेफिनेटली पी नॉट होगा, करेक्ट। इस लेवल पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, और यहाँ पर लिक्विड लेवल इस तरह है कुछ, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली पी नॉट। और मान के चलो मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिया, यहाँ पर एक अलग सा लिक्विड लिया, अलग सा लिक्विड मतलब इसका डेंसिटी अलग है, मान के चलो इसका डेंसिटी ρ2 है, करेक्ट। और बाकी जो मैंने लिया फ्लूइड, इसके अंदर और भी एक फ्लूइड लिया मैंने, लेट आई टू अनदर फ्लूइड, दो फ्लूइड यहाँ पर है इसके अंदर। इस फ्लूइड का स्टूडेंट डेंसिटी ρ2 है, करेक्ट। मैं कुछ पॉइंट्स लेने वाला हूं यहाँ पर जो कि सेम लेवल पे होगा, ठीक है। लेट मी टू टेक सम पॉइंट्स ऑफ सेम लेवल, ठीक है। फ्रेंड्स, यू सी हियर, मान के चलो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया सेम लेवल पे, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, बोथ आर इन सेम लेवल। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, करेक्ट। और इसी की बेस पे और एक पॉइंट मैंने लिया, और इसके स्ट्रेट पे ये भी मैंने लिया एक पॉइंट, मैं लेवल दिखा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट है, ये लेवल 4 है, और उसके नीचे ही मैंने और एक पॉइंट ले लिया, चलो 5 6 सेम लेवल है दोनों, 5 6। अभी देखो ध्यान से, और अगर यहाँ पर 4 की बात करें हम, तो ये लिक्विड लेवल जो है ना ये H2 हाइट पे है, और ये जो 3 पॉइंट में लिया हूँ, जो पॉइंट 3 लिया हूँ, ये मान के चलो ऊपर से H1 हाइट पे है। पूरा एक क्वेश्चन पे सब कुछ मिला दे रहा हूँ। सोच देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्या, वो तो सेम लेवल पे है, क्या सेम होगा, डू यू थिंक कि ये तो सेम लेवल पे नहीं, अलग लिक्विड है, डेंसिटी अलग है, हाइट अलग है, सो डेफिनेटली P1 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू P2। मेरा वाला लॉजिक समझ पे आया? बट स्टूडेंट देखो, ये जो P3 है, सी हियर P3 में जो लिक्विड है P4 में भी वही लिक्विड है ना नीचे में,
ऊपर में क्या लिक्विड है उसको छोड़ो, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सेम लिक्विड है ना यहाँ पर, ये लिक्विड यहाँ इस लेवल तक है, तो दैट मींस वी कैन राइट स्टूडेंट P3 इज इक्वल टू P4। अगर P3 को कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऊपर में P0 प्लस यहाँ पर लिक्विड क्या है, अगर P3 को मैं कैलकुलेट करूँ तो P3 कितना हो जाएगा, इसका रो वन सर, ये रो वन है क्योंकि इसको हम रो टू लिए, ठीक है, ये रो वन है, दिस इज रो वन। अच्छा, so P हाइट इज H1 into G into H। हाँ, तो P3 कितना हो जाएगा, रो वन G H1, और P4 कितना हो जाएगा, वही P0 प्लस इस लिक्विड की वजह से प्रेशर आएगा ना, ठीक है, कितना प्रेशर क्रिएट होगा उसी लेवल पे, रो टू G H2। into G into समझ पे आया। तो अगर कोई भी एक डाटा दिया होगा और दूसरा पूछा होगा कितना हाइट पे, ये हाइट कितना है, तो आप निकाल सकते हो ना, ये लॉजिक दिमाग में रखते हुए, ठीक है। Yes, sir। और हम ऐसे भी P5 इज इक्वल टू P6 भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू भी सेम, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट सेम लिक्विड है, ठीक है नहीं, P5 P6 है ना। तो स्टूडेंट अगर ये P3 और P4 को देखो, P0 मैंने कैंसिल कर दिया, G मैंने कैंसिल कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, रो वन H1 इज इक्वल टू रो टू H2 लिख सकते हैं ना। Yes, sir। दैट मींस रो H इज इक्वल टू कांस्टेंट एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, दैट मींस हाइट जो है ना वो डेंसिटी के साथ क्या, अगर डेंसिटी बहुत बड़ा हो, ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विड का हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितना लिक्विड राइज करेगा ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, एंड दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। यस सर। हम जो बारोमीटर पे हम जो प्रेशर मेजर करते हैं ना, बारोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ना कि बारोमीटर जो प्रेशर यूज करने के लिए यूज किया जाता है, याद है ना, बारोमीटर। यस सर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, निकाल। हाँ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया कैसे 1.01, वो आया कैसे स्टूडेंट्स, हमने क्या किए, यहाँ पर एक लिक्विड कलम, लिक्विड पे क्या लिए हम, मर्क्यूरी ले लिए, क्या लिए स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक उल्टा सा होलो ग्लास ट्यूब डाला, ठीक है। और स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट पे सारे लगेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर जगह पे है कि नहीं। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगेगा तो यहाँ पर लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा ना, इस पे लिक्विड लेवल राइज होगा कि नहीं, जो पहले इस लेवल पे था, जब मैंने यस यहाँ सर। पर डाल दिया तो ये लिक्विड नीचे थोड़ी ना नीचे की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ पुश होगा। तो मान के चलो रेफरेंस लेवल Yes, से sir। लिक्विड लेवल H हाइट तक चला गया, कितना हाइट तक चला गया, H हाइट तक चला गया। वो H। क्यों आया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आया ना, दैट लिक्विड केम इनटू ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये राइज हुआ। और वो कितना राइज हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे, P0 इज इक्वल टू हाउ मच, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू कितना हाइट गया इनटू G। इस तरह से प्रेशर पता चलेगा ना, कि नहीं। Yes, sir। यस सर। तो ये जो हम ऑब्जर्वेशनली देखे कि मर्क्यूरी जो राइज करता है दैट इज 760 mm, 760 Yes, mm sir। राइज करता है, मतलब कितना, 76 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। Yes, sir। अगर उसको मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.76 मीटर। 0.7। तो अगर मैं यहाँ पर रोजीज की वैल्यू निकालूं, स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 into 10⁻3, करेक्ट, दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, ठीक है। और हाइट कितना गया, मीटर पे अगर लिखेंगे तो 0.76। ये पूरा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मिला, 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ पा रहा है स्टूडेंट्स। अगर Yes, उसने sir। क्वेश्चन पे दिया कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ बार है, अगर मैंने लिक्विड को उसी बारोमीटर को ले गया मैंने कुछ भी एक जगह जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4, तो वहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आप बाय 4 कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, जी के साथ कैसे वेरी होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ यस मर्क्यूरी सर। फिक्स्ड है ना, ये तो हम एक्सपेरिमेंटल एज निकाले, तो अगर जी वेरी हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वेरी हो जाएगा ना, तो आप लिंक करके यहाँ से निकाल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू के साथ रिलेटेड है। फ्रेंड्स चलो यहाँ पर एक और एक डिवाइस है मानोमीटर, उसके लॉजिक थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस आया, न्यूमेरिकली हो सकता है, थियोरेटिकली हो सकता है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट राइट, मानोमीटर, मानोमीटर। फ्रेंड्स मानोमीटर जो है ना वो क्या करता है, इट इज अ डिवाइस
सर सुनना ही नहीं दे रहा है। कुछ गैस है कैसे मेजर करते हैं, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। फ्रेंड्स हमें मैनोमीटर पे क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड ए कंटेनर। यहाँ पर मैंने कुछ गैस ले लिया, ठीक है, आई टुक सम गैस हियर। मुझे इसकी अंदर की प्रेशर मेजर करना है, कैसे मेजर करूंगी? चलो ये प्रेशर ये यहाँ तक भरा हुआ है, वो गैस ना यहाँ तक भरा हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ एक अलग सा ले लिया, मैंने पहले से यहाँ पर लिक्विड रखा था और इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड को पुश करके इसको यहाँ तक उठा रहा है। ठीक है, लेट मैंने लिक्विड का लेवल जो है ना वो यहाँ पर लिया था, पहले मैंने यहाँ से एक लिक्विड लेवल ले लिया था 1 और 2, इसको फिक्स रखा था मैंने। ठीक है, जब इस ये जो अंदर में जो गैस है उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो प्रेशर क्या कर रहा है कि ये लिक्विड लेवल को यहाँ से पुश करके कहाँ तक लेके जा रहा है, H0 तक, H हाइट उठा दे रहा है। और ये जो लिक्विड है यहाँ पर भी वही लिक्विड है, दैट मींस हम बेशक लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये जो P1 प्रेशर है, ये जो P1 प्रेशर है वो किसकी वजह से? कंटेनर की वजह से है ना। यस सर। और P2 किसकी वजह से? इस तरफ में कैलकुलेट करेंगे P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? P0 प्लस रो जी एच ना, मान के चलो ये जो मैं लिक्विड लिया उसका डेंसिटी जी है और ये H है। ठीक है, तो P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर कर लेते हैं P0, तो P2 इज इक्वल टू कितना हो गया? P0 प्लस रो जी एच। अंडरस्टूड? तो अगर P0 प्लस रो जी एच में कैलकुलेट कर दिया तो दैट इज द गैस की कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वही तो रिस्पांसिबल है इस लिक्विड को इस साइड तक लेके जाने के लिए, और लिक्विड को इस साइड तक उठा दे रहा है, मतलब क्या है? कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। तो प्रेशर कितना है, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? P0 प्लस रो जी एच। उसी से हम लॉजिक लगा के पता चल सकता है कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द, वो यहाँ पर लिखा होगा, वैल्यू दिया होगा कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होगा। तो अगर ये लॉजिक पता होगा कि P2 इज इक्वल टू P1 एंड दैट P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, तभी जाके आप निकाल सकते हो ना। यस सर। तो हाँ पता तो चल गया कि P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, बट अभी क्या किया मैंने, एक लिक्विड कलम लिया, ठीक है, अब इस भी उसको मैंने एक लिफ्ट के अंदर रख दिया। गेटिंग माय पॉइंट ना? आई जस्ट केप्ट इट इनसाइड ए लिफ्ट, जो लिफ्ट लीड की ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है या नहीं तो फिर नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड जो फ्लूइड है ना वो एक लिफ्ट के अंदर एक्सीलरेट कर रहा है। तो जब एक्सीलरेटिंग तो जी इफेक्टिव तो चेंज हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी प्लस है और नीचे की तरफ आएगा तो जी माइनस है। तो उसके हिसाब से ही प्रेशर चेंज हो जाएगा ना। दैट मींस एक्सीलरेटिंग फ्लूइड अगर अपवर्ड जा रहा है तो प्रेशर कितना हो जाएगा सर? रो एच इंटू जी प्लस ए कर देंगे। ये निकाल सकते हो आप, कहीं पे प्लस ए हो सकता है और कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, रो एच इंटू जी माइनस ए करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में प्रेशर कैसे वेरी करता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर।